बेला मैं म्यूट करती हूँ, आप शुरू कर दीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। Okay, thank you. Yeah, now, Deepa? Yeah, I can start? Yeah, you can. Good afternoon and a warm welcome to Vidya Tech Fest 2021. My name is Deepa Shetia. I am from Vidya NGO. Today's workshop is on best practices for breastfeeding for women. Before starting, let me give brief information about Vidya NGO. Vidya NGO is a 35-year-old non-profit organization having more than 75 projects spread across Delhi, Gurugram, Bengaluru, Pune, and Mumbai. Till now, Vidya's different programs meant for children, youth, and adults have impacted the lives of around 375,000 people, more than half of which includes girls and women. One of Vidya's major programs works for empowering women. Vidya's Women program empowers women and adolescent girls with the skills and opportunities to imagine a different future and take concrete steps that will transform their lives. All our programs meant for women incorporate spoken English training, life skills, IT skills, and occasional courses. In line with Vidya's commitment towards women empowerment and well-being, we decided to conduct a workshop on breastfeeding. Breastfeeding provides health benefit for mothers beyond emotional satisfaction. Studies shows that women who have breastfed experience reduced rates of breast and ovarian cancer later in life. Today's esteemed guest is Dr. Bela Tony. She has done PhD in microbiology and is associated with Spoken Tutorial project for last 5.5 years. She leads a health and nutrition project in Spoken Tutorial. Now let me hand over mic to the speaker of today's workshop on best practices for breastfeeding, Dr. Bela Tony. Welcome, Bela ji. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you for such a warm welcome. Ma'am, we are not able to see you. Switch on your video. Oh. Yeah. Done. Oh, yeah. So I'll start talking in Hindi now because the audience is majority from Hindi speaking areas, right? Yes, ma'am. ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्ते सबको, मेरी नमस्ते। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ विद्या का। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ विद्या का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात। You are on mute, Bela ji. Bela ma'am, you are on mute. Can you hear me now? Yeah, yes, now I can, yeah. Okay. So you have to tell me in between, okay? Yeah. So शुरू करते हैं। नमस्ते सबको। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ विद्या का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करने का। जितना मैंने सीखा है पिछले 5 साल में स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ माँ और शिशु पोषण श्रृंखला में। मेरे साथ हैं दीपाली फरगड़े मैडम, ये क्षेत्र कार्यकर्ता हैं। इनको 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है बच्चों के साथ, माँओं के साथ, किशोरावस्था के लोगों के साथ, सबके पोषण से और में इनको से ये काम कर रही हैं, मदद कर रही हैं लोगों की। तो आज हम दोनों आपके सामने अपना जो अनुभव रहा है और जो कुछ स्तनपान के बारे में बातें हैं वो हम आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज बात कर पोषण की, जो किशोर अवस्था में होनी चाहिए। माँ बनने से पहले अपने शरीर के बारे में ख्याल रखना चाहिए। माँ बनने के बाद जो कि दूध पिलाती हुई माँ का अपना पोषण पे जो ध्यान देना है उसके बारे में बात करूंगी। मैं सारी बातें बताऊंगी फोटोज के साथ, ड्राइंग्स के साथ, और दीपाली मैडम क्या करेंगी, आपको एक डॉल के साथ सब कुछ समझाएंगी। Can you hear me? Yes, ma'am. Hello, Mehla, can you hear me? Yeah, we can hear you clearly, ma'am. Yeah, okay.
या तो ओके, द स्लाइड बदल दो प्लीज। और दीपाली मैडम क्या करेंगी आपको समझा। यमी हेलो। Yes, ma'am. ओके या तो दीपाली तो स्तनपान कराने की कई तकनीकें हैं। सबसे पहले जब एक औरत माँ बनती है तो क्या होता है कि माँ उसकी माँ बताती है और उसकी माँ को उसकी दादी ने बताया होगा। ऐसे हमें कई पीढ़ियों से पता चलता है कि स्तनपान कैसे कराना है। हम अपनी बेटी को बताते हैं, फिर बेटी अपनी बेटी को बताती है या बहू को बताती है। इस तरह हमें बहुत लोगों ने बताया होगा स्तनपान कैसे कराना है, बच्चे को कैसे पकड़ना है, लेकिन जो असल तकनीक है वो नहीं बताया जाता। ऐसा नहीं होता है कि जस्ट बच्चा पैदा हुआ, आपने उसे अपने स्तन पे रखा और दूध पिलाना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। एक हर काम का एक तरीका होता है और स्तनपान कराने का भी एक बहुत खास तरीका होता है। नई माँ इतना सब जानती नहीं है, उसको जो बताया जाता है और बाकी कुछ वो अपने आप ही सीख जाती है करते करते। लेकिन इसमें इस दौरान क्या होता है कि कुछ एक हम बातें ऐसे करते हैं, काम ऐसे करते हैं जो कि हम फिर थक जाते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, माँ जब बैठती है बच्चे को दूध पिलाने तो पीठ को सहारा नहीं देती। सबसे पहला, पीठ को सहारा नहीं दोगे आप, कब तक इस तरह दूध पिला सकते हो? थोड़े टाइम के बाद आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा। जहां भी आप बैठते हो, अगर आपके पैर लटके हुए हैं, अगर उनको सहारा नहीं मिल रहा है नीचे से किसी मूड़े का या स्टूल का, तो फिर आपके पैर थकेंगे। इस तरह हम अब मैं कई बातें आपको बताऊंगी जो आपको करनी है स्तनपान कराते हुए, जो नहीं करनी है वो भी बताऊंगी, और ऑफ कोर्स पोषण भी बताऊंगी। तो स्तनपान जो है हर माँ अपने हिसाब से करती है, उसको और उसके बच्चे को क्या ठीक बैठता है, किस हिसाब से उसको आराम मिलता है स्तनपान कराते हुए। अब आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, देखिए 5 तस्वीरें हैं, उसमें देखिए हर माँ ने अलग तरीके से अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। सबसे पहला है क्रॉस क्रेडल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रेडल, चौथा है टेक लगा के माँ लेटी हुई है दूध पिला रही है, और पांचवा आप देख रहे हैं माँ साइड पे लेटी हुई है। तो फुटबॉल जैसा जो आपको दूसरा आप देख रहे हैं तस्वीर, उसमें क्या है, फुटबॉल तब फुटबॉल पकड़ तब करते हैं अगर माँ को जुड़वा बच्चे हों या माँ के स्तन बहुत बड़े हों। इस तरह जो लास्ट की 2 तस्वीरें हैं आखिरी की, वो आप देखोगे माँ आराम से लेट के दूध पिला रही है। कई बार बोला जाता है लेट के नहीं पिलाना, अगर सही से लेटी हो माँ तरीके से तकिए लगा के बच्चे को पकड़ के, तो दूध पिलाया जा सकता है। लेट के भी देखिए माँ कैसे दूध पिला रही है। अब इन सब में से सबसे पहला है क्रॉस क्रेडल, मैं अब उसके बारे में बात करूंगी। क्रॉस क्रेडल पकड़ बोलते हैं। चलिए दीपाली। तो क्रॉस क्रेडल तकनीक से स्तन को पकड़ने का सही तरीका, आप अगर इस तस्वीर को अच्छे से देखो तो आप समझोगे कि माँ ने शिशु को कैसे पकड़ा है। जिस स्तन से दूध पिलाना है उसको उसने बच्चे को उस स्तन पे रखा है, हाथ देखो किस तरह है माँ के। दूसरा ये तीसरी बात ये देखिए कि बच्चे के पैर किधर है, माँ के बगल से निकल रहे हैं, माँ ने कस के पकड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, दीपाली प्लीज। हाँ, अब ये वीडियो है, ये YouTube पे है ये वीडियो, मैं आपको सारे लिंक्स वगैरह दूंगी, पहले आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए। दीपाली प्लीज प्ले द वीडियो।
Dr. Bella, video is not playing our. Yeah, I mean, I don't know. Dipali has to tell. Dipali? स्क्रीन आया क्या बेला? नहीं. ओह, मनीषा, आपको अपने आप को म्यूट पे रखिए मनीषा, और वीडियो भी बंद कर दीजिए. हेलो. बेला नेक्स्ट करूँ मैं? नहीं, ये वीडियो प्ले नहीं हुआ दीपाली जी. वीडियो रन नहीं हो रहा. पूरा वीडियो दिखाना है क्या बेला? नहीं, थोड़ा सिर्फ कुछ यहाँ पे एक तो मिनट. यहाँ पे तो हुआ था. एक मिनट. अच्छा, शायद आपने ना वो शेयर स्क्रीन करते वक्त वो स्पीकर का वो नहीं लिया, शायद साउंड वाला. ओह, ओके. तो क्या करे बेला? Dr. Bella, if you want, if you send the PPT to me, I can also share. Okay, that is fine. You just mail me, and I can share it. आवाज बिल्कुल नहीं आती है. अभी आ रहा है, लेकिन कुछ पिक्चर नहीं दिख रहा है. दुनिया भर में माएं अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्तनपान कराती है. एक मां और उसके शिशु के लिए स्तनपान कराने की तो फिर पॉज कर देती हूँ मैं बेला. जिसमें मां और शिशु दोनों के लिए स्तनपान शुरू से अंत तक आरामदायक हो. बेला, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो ना? बेला, आप किसी के साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो ना? बेला मैम, आपने महिला से शेयर किया है पीपीटी? से शेयर किया है पीपीटी? क्या? She's speaking, but she's not audible. No. Yeah, I'll share in a minute. Yeah, I'll share in a minute. Machine hang.
Yeah, Dr. Bella, now the screen is visible. स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माँ और शिशु के लिए स्तनपान की सही स्थिति चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और क्रॉस क्रेडल स्थिति करने की संपूर्ण क्रियाविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में माएँ अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्तनपान कराती है। माँ और उसके शिशु के लिए स्तनपान कराने की सबसे अच्छी स्थिति वो होती है जिसमें माँ और शिशु दोनों के लिए स्तनपान शुरू से अंत तक आरामदायक हो। शिशु माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव कर पाए और उसे भरपूर दूध मिल पाए। आज हम स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति के बारे में सीखेंगे। ये स्थिति शिशु के शरीर पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए, माँ के स्तन को सही आकार में पकड़ने के लिए और शिशु का स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति है। स्तनपान कराने से पहले माँ को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर सुखाना चाहिए। Somebody has to somebody has to put the mic on mute. There's a lot of echo coming. Redmi 8A. Naila, can I start sharing? My phone is now working. Oh. What should I do, Dr. Bella? Yeah, you pull out, I will upload. Okay, fine. Yeah. Redmi 8A आपको एग्जिट करके चाहिए तो वापस, हाँ अभी हो गया। कल का परसों पेपर ये अपने आप ही बैग में ना वो पाउच में रखी है। Yeah, shall I continue? Yeah, please. Yeah. So next is स्तनपान से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि माँ बनने से पहले की तैयारी क्या होती है। सबसे अहम बात होती है पोषण की।
वो पोषण अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में आप देखिए कि हमें माँ बनने से पहले अपने शरीर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा पोषण लेना पड़ता है, कितनी मात्रा में क्या चीज हमें मदद करेगी ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और प्रसव के बाद माँ भी स्वस्थ रहे। It's not playing. It is playing here for me. No, but audio is not coming here. That's why while sharing the screen, no, you need to take that option. Share with sound. It is showing for me, Mela. Such a bad time here. I don't know what is happening. If you want, I can share. Yeah, fine. Yeah. Yeah, so you stop share. I will share. You give me instruction what to do. I will do that. Okay. So you can stop share. Okay. Done. Yeah, Stop sharing. I'm just giving co-host control to Deepa. So Deepa, you then mute the people, whoever is. Yeah. Yeah, I'm just giving you the control and I will start sharing. Okay. Yeah. Should I go to the next one? Yes, please. स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे There's a video that has to come. In this, there is no video. Next slide. 5. Okay. Yeah. I'll play this. Yeah. पूर्व गर्भावस्था के पोषण के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रजनन और पूर्व गर्भावस्था के दौरान पोषण संबंधी जरूरतें। पहले शुरू करेंगे प्रोटीन से। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों के विकास और रखरखाव के लिए जरूरी होता है। ये कोशिकाओं को ठीक करने, हड्डी के विकास और जोड़ों के लिए जरूरी होता है। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में, तंदुरुस्त जिगर बनाए रखने में और ऊर्जा देने में भी मदद करता है। प्रोटीन ऐसे रसायन बनाता है जो हाजमे में मदद करते हैं, शरीर में जहरीले पदार्थों को तोड़ते हैं, खून में शुगर की मात्रा बनाए रखते हैं और दिमाग से संकेत इधर उधर ले जाते हैं। प्रोटीन की कमी से भ्रूण का उम्र के हिसाब से कम विकास होता है, जैसे कम लंबाई, और फिर याददाश्त, हाथ, अंगूठे और उंगलियों पर भी नियंत्रण नहीं होता। इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। बड़ी उम्र के लोगों में अपनी पिन निकालना। Yeah, share the next slide. तो अब हमने अभी तक इस वीडियो में देखा था कि पोषण क्यों जरूरी है और पोषण में क्या क्या जरूरी है। बाकी डिटेल्स मैं अभी और बताऊंगी। अब नेक्स्ट अगला हम देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान पोषण से भरपूर आहार की क्या महत्वता है, क्यों जरूरी है पोषण से भरा खाना। सिर्फ खाना नहीं खाना, जैसे जो सड़क पे चाट पकौड़ी मिलती है उसमें कुछ पोषण नहीं है। जो घर पे बना खाना है, जो हम सोच के समझ के बनाते हैं, उसमें पोषण है। क्यों जरूरी है? कोशिकाओं के विकास के लिए, भ्रूण की वृद्धि, फिर और साथ में विकास के लिए। अब आप देखें
इस जो ये सामने आपको नजर आ रही है फोटोज जो आपको दिख रही हैं, इसमें देखिए माँ का पेट 9वें महीने में कितना बड़ा है और शिशु कैसे उसके वृद्धि और विकास हो रहा है। और कोशिकाएं देखिए जो नीली दिख रही हैं, और जो नीचे वाली तस्वीर है उसमें देखिए बच्चे का शरीर माँ के पेट में कैसे बढ़ रहा है, उसके दिमाग कैसे बढ़ रहा है। इन सब चीजों के लिए आपको पोषण युक्त आहार खाना चाहिए। सोच समझ के बनाइए, घर पे बनाइए। महिला नेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगी गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्व माँ के शरीर को किस किस तकलीफ से बचाते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या फायदे हैं। अब आप देखिए, मतली और कब्ज होना ये बहुत आम बात है। जब एक औरत माँ बनने वाली होती है गर्भावस्था के दौरान, मतली और कब्ज आप किसी से भी पूछेंगे हर कोई यही बोलता है। अनीमिया हो जाता है, खून की कमी जिसे बोलते हैं। फिर गर्भावस्था के दौरान कई लोगों को डायबिटीज जिसे शुगर या मधुमेह बोलते हैं वो हो जाता है। और कई लोगों को उच्च रक्तचाप होता है, जो कि हम कहते हैं नॉर्मल डे टू डे बात में हम बोलते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। इन सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम पोषण युक्त खाना घर पे खाएं। नेक्स्ट महिला। बाकी के फायदे क्या हैं पोषण युक्त खाना खाने के? माँ को समय से पहले के प्रसव के खतरे से बचाता है। पोषण जो उसके शरीर में तब लिया होगा जब वो माँ बनने का सोच रही थी, फिर गर्भावस्था में आई। और जन्म के समय नवजात सही वजन का पैदा होता है। कई बार आपने सुना होगा कि उनका बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, इनका बच्चा कमजोर पैदा हुआ। वो सब इसीलिए क्योंकि खुराक पे ध्यान नहीं दिया माँ ने जब माँ गर्भावस्था में थी। और हो सकता है गर्भावस्था से पहले, माँ बनने से पहले भी उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, जो खाना है वो नहीं खाया। नेक्स्ट महिला। अब आहार में, अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि पोषक तत्व चीजें अपने खाने में खाएं। अब आप पूछेंगे क्या होना चाहिए उस खाने में, क्या क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए वो है प्रोटीन, अच्छी चर्बी जिसे हम फैट बोलते हैं, अच्छे वाला फैट जैसे घी, जैसे मक्खन। विटामिन होने चाहिए, आयरन होना चाहिए, कोलिन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, ये सब चीजें उन खानों में भरपूर होनी चाहिए। नेक्स्ट महिला। नेक्स्ट। अब आपने ये सब देखा कि प्रोटीन, जिंक, कोलिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज पदार्थ ये सब होना चाहिए। लेकिन सिर्फ खाने में ये हो और हम खाना खाएं ये जरूरी नहीं है। लेकिन कि ये जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को जाके लगेगा, जिसे कहते हैं शरीर सोख पा रहा है कि नहीं। वो अब मैं बताऊंगी कैसे करना है। पोषण से भरपूर खाने के साथ ये भी जरूरी है कि शरीर पोषक तत्वों को सोख पाए। सिर्फ वो खाने से लेना जरूर काफी नहीं होता। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अरे वो मेरे शरीर को लग भी रहा है कि नहीं। बहुत बार आपने सुना होगा माएं बोलती है अरे हम खाते हैं पर हमको लगता नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है कि जिससे पोषक तत्व जो आपके आहार में मौजूद हैं वो आपके शरीर को किस तरह लगे, शरीर कैसे उसे सोख पाए। नेक्स्ट महिला। तो सोखना बढ़ाया जा सकता है इन सब तरीकों से। भिगोना, जैसे कि आप दाल, राजमा, छोले ये सब बनाते हैं, इन्हें रात को भिगो देते हैं। उसी तरह जो दालें होती हैं उनको हम कभी कभी नहीं भिगोते या 1 घंटे के लिए भिगोते हैं, उसको भी काफी घंटों के लिए भिगोना है। अंकुरण, अंकुरण से तो मतलब जो खाने में पोषक तत्व हैं उसकी जो मात्रा है और उसका जो शरीर को सोख पाना है वो बहुत बढ़ जाता है। अंकुरण करना तकरीबन सबको ही आता है। अगर किसी को नहीं भी आता, कोई अगर किशोरावस्था में कोई लड़की सुन रही है मेरा प्रेजेंटेशन, तो मैं आपको बताऊंगी ट्यूटोरियल्स जिसमें ये सब बताया हुआ है अंकुरण कैसे करना है। हाँ, फिर हम चीजों को भूनते हैं, खमीर उठाते हैं, सेकते हैं, पकाना, खाना पकाना,
और उबालना, इन सब चीजों से जो पोषक तत्व खाने में मौजूद है, शरीर आपका शरीर उन सबको अच्छे से सोख पाएगा। नेक्स्ट महिला। अब बात करेंगे हम पानी की। पोषण से भरपूर खाने के अलावा हर दिन माँ को 8 से 10 गिलास पानी पीना भी बहुत जरूरी है। क्यों? मैं बताती हूँ। 750 ml के करीब दूध बनता है माँ का। अगर वो दूध बन रहा है तो पानी की जरूरत भी तो होगी शरीर को। अक्सर माएं पानी पीना भूल जाती हैं, इतने अपने काम में व्यस्त होती हैं, बिजी होती हैं, पानी पीना ही भूल जाती हैं। तो हर माँ को ध्यान देना है, गर्भावस्था में 8 से 10 गिलास पानी, गर्भावस्था में भी और स्तनपान के दौरान भी इतना पानी जरूर पीना है। महिला नेक्स्ट प्लीज। और अब मैं बताऊंगी गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं करना है। मैं आपको बोली थी चाट पकौड़ी में कोई पोषक तत्व नहीं होते। अब आपको क्या बताना है मैंने, ये देखिए, शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल ना करें, इससे क्या होगा, वजन बढ़ेगा। फैक्ट्री में तैयार किया झटपट पकने वाला खाना, ये तो बिल्कुल खैर खाना ही नहीं चाहिए। शराब, तंबाकू बिल्कुल भी नहीं। और बिना डॉक्टर के अनुमति, बिना डॉक्टर से बात किए दवा ना लें। क्या मालूम आप कुछ ले रहे हैं और आपके शरीर पे क्या उसका असर पड़ रहा है। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हर गर्भावस्था औरत को फॉलो करनी चाहिए। शक्कर और गुड़ नहीं लेना है, फैक्ट्री का तैयार किया वो झटपट 2 मिनट में पकने वाला खाना नहीं खाना है, शराब तंबाकू तो बिल्कुल भी नहीं, और बिना डॉक्टर के अनुमति के कोई दवाई नहीं खानी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो अब मैं बात कर रही थी अंकुरन की। तो इस वीडियो में सब है। इस वीडियो में कुछ एक रेसिपीज है जो कि आप बना सकते हैं। ये तो चलो हमने महाराष्ट्र में बनाया है, तो हमने हमारे एरिया में जो आसानी से मिल जाती हैं चीजें, हमने वो सब ली और हमने बना डाला। आप अगर दिल्ली के हैं या कर्नाटका के हैं या केरल के हैं या बंगाल के हैं, कहीं के भी हैं, आप अपने इलाके में मौसम के हिसाब से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके ऐसी रेसिपीज बनाएं। महिला प्लीज प्ले द वीडियो। गर्भवतियों के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पोषण से भरपूर आहार की महत्वता और पोषण से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। आइए पहले समझते हैं कि पोषण से भरपूर आहार की क्या। तो अगर आप अपने फोन पे, मैं आपको बताऊंगी, यूट्यूब लिंक दूंगी, आप अपने फोन पे अगर ये वीडियो प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कुछ 5-6 रेसिपीज हमने बताई हैं। और मेरे साथ टीम है जो कि पोषण विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये खाने बनाए हैं, 4-5 हैं। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इस खाने में क्या क्या है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, और ये खाने से आपको कितना क्या मिलेगा। अब अगर सपोज मैंने जैसे बताया आपको एक चीज नहीं मिलती है, आपके इलाके में नहीं मिलती है, तो आप अपने इलाके में मौसम के हिसाब से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल करें। नेक्स्ट महिला। उसी तरह अभी मैंने पहले शाकाहारी खाना बनाने के तरीके का वीडियो आपको दिखाया था, उसी तरह ये मांसाहारी खाना बनाने के तरीके का वीडियो है। कुछ माएँ हैं, कुछ फैमिलीज हैं, कुछ परिवार हैं जहाँ पे अंडा, मीट, मच्छी सब खा लेते हैं, अच्छी बात है, तो ये उनके लिए बना है। आप देखना, मैं आपको वीडियो बताऊंगी, यूट्यूब लिंक बताऊंगी, आप यूट्यूब पे जाके वहां पे सब्सक्राइब करिएगा तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज महिला। गर्भवती औरतों के लिए मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मांसाहारी खाना खाना क्यों जरूरी है और कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके गर्भवतियों के लिए। पहले जानेंगे अलग अलग मांसाहारी खाना खाना क्यों जरूरी होता है। मांसाहारी खाना जैसे कि चिकन, मांस, मछली, झींगा, भेजा, कलेजी, ये सब प्रोटीन, जिंक, कोलिन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व भ्रूण के विकास और बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। ये शिशु की बुद्धि के विकास के लिए और माँ की तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए भी जरूरी हो।
नेक्स्ट प्लीज यार, नेक्स्ट। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था स्तनपान कराने के बहुत तरीके होते हैं। जैसा माँ को ठीक बैठे बच्चे को पकड़ के, उसी तरह माँ दूध पिलाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें तकनीकें जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इतना काफी नहीं है कि बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और स्तनपान कराया, उससे माँ का पूरा दूध नहीं जाएगा बच्चे के शरीर में। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी तकनीकें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले क्लिक प्लीज। हाँ, स्तनपान से पहले माँ को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आजकल आपको मालूम ही है, कोविड की वजह से सब जगह बोला जा रहा है हाथ धोएं, हाथ धोएं, हाथ धोएं। तो यहाँ पे क्या करना है? स्तनपान कराने से पहले सबसे पहले हाथों को अच्छे से धोकर सुखा लें, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पिए। मैंने आपको बोला है पानी क्यों जरूरी है। फिर मैंने ये भी बताया था पीठ को टेक लगा के बैठना है हमेशा। फर्श या बिस्तर पर जहां भी बैठे आराम से बैठें और तरीके से बैठें। फिर कंधे ढीले रखें, एकदम टाइट कंधे और एकदम मुड़े हुए उस तरफ इस तरफ ऐसा नहीं होना है। नेक्स्ट प्लीज। अब आपने हाथ धो लिए, आप आराम से बैठ गए। अगर कुर्सी पे बैठे हो पैरों को सहारा दे दिया, और अगर बिस्तरे पे बैठे हो तो पीठ को सहारा दे दिया। कुर्सी पे भी बैठे हो तो पीठ को सहारा देना है, नहीं तो फिर पीठ में बहुत दर्द हो जाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना। अब बच्चे को ले लिया गोदी में, अब नेक्स्ट क्या करना है? अपने ब्रा और ब्लाउज हटा लें। हाँ, फिर माएँ क्या करती हैं कि ऊपर की तरफ कर देती हैं। उससे क्या होगा? जो दूध की नली होगी वो दबेगी आपकी, तो दूध आएगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? ब्लाउज और ब्रा बिल्कुल हटा देना है, स्तन को बिल्कुल बाहर निकालना है। उसके ऊपर कपड़े का दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव होगा तो दूध की नली दबेगी, फिर दूध नहीं आएगा, फिर बच्चा रोएगा। इसीलिए ये इस बात का ध्यान रखना है। फिर शिशु के ऊपर से कंबल या चादर जो भी है वो भी हटा दे। जिस तन से दूध पिलाना हो दूसरी तरफ वाले हाथ से, इसको अब क्रॉस क्रेडल बोलते हैं। जिस तन से दूध पिलाना हो दूसरी तरफ वाले हाथ से शिशु का सर पकड़े, फिर और शिशु के पैर अपनी बगल में कस के दबा के रखें, और स्तन तक पहुंचने के लिए शिशु को ऊपर उठाना है। माएँ क्या करती हैं? खुद ही झुक जाती हैं। खुद ही झुकेंगी तो एक तो बच्चे को ग्रिप नहीं मिलेगा माँ के स्तन पे, दूसरा माँ की पीठ बहुत दर्द होगी। अक्सर आपने सुना होगा माएँ बोलती है मेरी पीठ बहुत दर्द होती है दूध पिलाते हुए, तो यही सब वजह है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब आपने बच्चे को पकड़ लिया सर पे, आपने अपने हाथ पे, ये जो दीपाली मैडम आपको डेमो देंगी तब आप ध्यान से और देखिएगा। ये जो आपके उंगलियों के बीच में जो जगह है ना, अंगूठे और उंगलियों के बीच में, इसमें बच्चे का सर रखना है। इतना कस के नहीं पकड़ना है कि बच्चा सिर ना हिला पाए। आपको ध्यान से एक कान के पीछे एक अंगूठा, बाकी उंगलियां दूसरे कान के पीछे रखनी है। नेक्स्ट प्लीज। और शिशु को कैसे पकड़ना है? शिशु का पेट ना माँ के पेट से हल्के से दबना चाहिए। और कई बार मैंने खुद देखा है माँ इस तरह बच्चे को पकड़ के रखती है, जैसे सिर इस तरफ है, पेट थोड़ा और पीछे को है और पैर कहीं और ही जा रहे हैं। उससे क्या होगा? अब आप देखो, आप जब खुद खाना खाते हो आप कैसे खाते हो? एकदम सीधा बैठते हो, खाना खाते हो ताकि मुंह से सीधा गले से उतरते हुए खाना पेट में जाए। उसी तरह बच्चे के लिए भी है। दूध पीता हुआ बच्चा, उसके गर्दन, पेट और पूरा शरीर एक ही सीधी रेखा में होने चाहिए। ये नहीं कि एकदम जिगजैग ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। नाक और निप्पल, माँ का निप्पल और शिशु की नाक एक ही सीध में होनी चाहिए। शिशु के पूरे शरीर को माँ को ध्यान से सहारा देकर पकड़ना है। फिर अब स्तन पे लाना कैसे है? गर्दन आगे करनी है, हल्के से हाथ से पकड़ा हुआ है आपने शिशु को, उसके गर्दन को आगे करना है और ठोडी को स्तन के, शिशु की ठोडी मतलब ये जगह, ठोडी को आगे लाना है, स्तन के करीब लाना है। नेक्स्ट प्लीज।
फिर जिस स्तन से माँ ने दूध पिलाना हो उस तरफ के हाथ से स्तन को नीचे से यू शेप में पकड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं, वी शेप में पकड़ते हैं, कैंची की तरह पकड़ते हैं। कैंची की तरह तो खैर बिल्कुल नहीं पकड़ना है, कतई नहीं पकड़ना है, क्योंकि दूध की नलियां दबेगी, दूध मिलेगा ही नहीं बच्चे को, बच्चा रोता ही रहेगा, माँ भी परेशान। तो क्या करना है, स्तन को नीचे से यू शेप में पकड़ना है। नेक्स्ट प्लीज। अब बताएं, देखिए कैसे माँ की उंगली कहाँ होनी चाहिए, कौन सी दिशा में, और अंगूठा कौन सी दिशा में। स्तन पर माँ की एक उंगली 9 बजे की तरफ और बाकी उंगलियां 3 बजे की तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये 9 और 3 वाला जो फोटो है ये अच्छे से देखना, ये मैं प्रेजेंटेशन मैडम लोगों को दे दूंगी, आपको जब चाहिए आप लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे 9 और 3 वाला जो फॉर्मूला है ना वो हमेशा ध्यान रखना। और साथ में कितनी बार मैंने देखा है, शायद मैंने खुद भी किया है, बच्चे के मुंह को जगह ही नहीं देते हैं हम कि वो माँ के स्तन से जुड़ पाए, हमारी खुद की उंगलियां बीच में आ जाती है। अब आप पानी पीते हो और अपना ही अंगूठा गिलास और मुंह के बीच में रखोगे तो पानी कैसे आएगा मुंह के अंदर, पूरा पानी आएगा ही नहीं। उसी तरह आपको भी ये सोच के समझ के माँ के स्तन पे, अपने स्तन पे देखो 3 उंगलियों की दूरी रखनी चाहिए, निप्पल से 3 उंगली की दूरी रखनी है ताकि शिशु अपना मुंह अच्छे से जोड़ पाए स्तन पे, निप्पल पे सॉरी। और जब ये हो रहा हो तो माँ की उंगलियां शिशु के होठों के समांतर एकदम सामने सामने बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब स्तन पर माँ ले आई बच्चे को तो हल्के से दबाना है, इससे क्या होगा, वो जो काला भाग है ना वो मुंह में आसानी से चला जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कई माएँ क्या करती हैं, सिर्फ निप्पल से दूध पिलाती हैं, वो बहुत ही गलत है, बच्चे को दूध ही नहीं मिलेगा पूरा, जबकि दूध इतना है माँ के पास। तो स्तन का जो काला भाग है वो जाना चाहिए, स्तन का जो काला भाग है वो जाना चाहिए माँ का जो स्तन का काला भाग है वो जाना है शिशु के मुंह में, निप्पल नहीं जाना है। निप्पल से बिल्कुल दूध नहीं पिलाना है, उससे दूध जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, और जाएगा तो बहुत थोड़ा जाएगा, शिशु का पेट नहीं भरेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब जब मैंने बोला कि मुंह में जब स्तन डालना है तो हल्के से दबाना है, तो एक समान दबाना है, ये नहीं कि उंगलियों से एक तरफ ज्यादा दबा दिया और अंगूठे से हल्के से पकड़ा, तो बराबर एक समान दबाना है। और मैंने आपको बोला वी आकार में तो बिल्कुल नहीं दबाना, स्तन को ना कैंची के आकार में पकड़ना है ना वी आकार में, इससे सब क्या है, दूध की नलियां दबेंगी। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं बात करूंगी, अब तक हमने बात की माँ की उंगलियों को कैसे स्तन पे रखना है, किस तरह रखना है, किस दिशा में रखना है, वी में नहीं रखना है, यू में रखना है, और वो 9 और 3 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे शिशु के मुंह की पकड़ माँ के स्तन पर। अब प्लीज प्ले द वीडियो। स्तनपान कराने के लिए मुंह की पकड़ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम शिशु के स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए मुंह की पकड़ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि स्तनपान कितनी बार कराया जाए। शुरू करने से पहले ध्यान दें कि एक असरदार स्तनपान के लिए मुंह की पकड़ बहुत जरूरी है। शिशु के मुंह का स्तन से गलत जुड़ाव होने की वजह से सिर्फ निप्पल से स्तनपान होगा, इससे शिशु को बहुत कम दूध मिलेगा, जबकि स्तन के एरियोला के निचले हिस्से से गहरे जुड़ाव से शिशु को काफी दूध मिलेगा। ध्यान दें कि एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। आइए शुरू करते हैं। स्तनपान शुरू करने के लिए माँ को अपने शिशु को सही तरह से पकड़ना चाहिए। ये सभी पकड़ विस्तार से इसी श्रृंखला के बाकी ट्यूटोरियल्स में बताए गए हैं। इस ट्यूटोरियल को क्रॉस क्रेडल पकड़ के जरिए समझाया जाएगा। याद रहे
शिशु के मुंह की सही पकड़ और सफल स्तनपान के लिए जरूरी है कि उसे सही तरह से पकड़ा जाए। इस चित्र में मां ने शिशु को क्रॉस क्रेडल पकड़ में सही तरह से पकड़ा हुआ है और शिशु भी स्तन से जुड़ने के लिए तैयार है। जुड़ने से पहले जरूरी है कि शिशु अपना मुंह पूरी तरह खोले, जैसे उबासी लेते वक्त। क्यों? आइए समझते हैं एक वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उम्र में बड़े इंसान को देखकर। हम वड़ा पाव या बर्गर खाने के लिए अपना पूरा मुंह खोलते हैं। उसी तरह पूरा मुंह खुला हुआ शिशु अपने मुंह में स्तन का बड़ा सा हिस्सा ले पाएगा। शिशु को उकसाएं कि वह अपना पूरा मुंह खोले और इसके लिए मां अपने निप्पल को शिशु के ऊपरी होठ पर हल्के से छुए जब तक कि शिशु अपना मुंह पूरा ना खोले। धीरज रखें। शिशु के पूरा मुंह खोलने में कभी कभी कुछ पल लगते हैं और कभी 2 मिनट। याद रहे, स्तनपान की किसी भी स्थिति में स्तन को पकड़ती हुई मां की उंगलियां और अंगूठा हमेशा शिशु के होठों के एकदम सामने होना चाहिए। जब शिशु अपना मुंह पूरी तरह खोलेगी तो उसके निचले होंठ को एरियोला के निचले हिस्से को छूना चाहिए और निप्पल की दिशा उसके मुंह के ऊपरी तरफ होनी चाहिए, ना कि उसके मुंह के बीच में। अब इस वक्त मां को चाहिए कि वो जल्दी से अपना स्तन। तो आपने देखा कि कितना जरूरी है शिशु के स्तनपान कराने के लिए मुंह की पकड़ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, अब आपने देखा कितना ज्यादा जरूरी है कि शिशु के मुंह की पकड़ माँ के एरियोला, वो काले भाग पे सही हो। बहुत जरूरी है। सिर्फ माँ अपना स्तन दे बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि शिशु की पकड़ अच्छी हो। अब आप देखें, अगर कोई स्तनपान कराती हुई माँ हो, अगर वो अपने निप्पल को दबाएगी तो कितना दूध निकलेगा, और अगर वो अपना ये काला भाग दबाएगी तो कितना दूध निकलेगा। इसीलिए मुंह की पकड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शिशु मुंह पूरा खोलेगी तो माँ के स्तन का काला भाग का निचला एरिया, बाहर का जो लाइन है, सीमा रेखा, वो पूरा मुंह के अंदर जाएगा शिशु के। और शिशु के मुंह को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम लगता है। किस तरह शिशु पूरा मुंह खोले और फिर माँ अपना स्तन उसको दे, तभी मुंह की अच्छी पकड़ होगी। नेक्स्ट प्लीज। तो अब ये आप जो आपने वीडियो देखा, ये सब अब मैंने आपको फोटो के साथ, ये जो आप चित्र देख रहे हैं उसके साथ एक एक लाइन लिख दिया है। निप्पल से शिशु के ऊपरी होठ को छुएं ताकि शिशु अपना मुंह पूरा खोले। अब नवजात शिशु को कैसे मालूम कि उसको पूरा मुंह खोलना है? वो तभी मुंह पूरा खोलेगी जब आप अपना निप्पल उसके ऊपर वाले होठ को छुएंगे। नेक्स्ट प्लीज। पूरा मुंह खोलते ही माँ को अपना स्तन डालना चाहिए, इसमें टाइम लग सकता है जैसे कि बताया। नेक्स्ट प्लीज। ऊपरी होठ निप्पल के बिल्कुल ऊपर और निचला होठ स्तन के काले भाग के बाहरी तरफ सीमा रेखा पर होना चाहिए। तब अगर आप ये देख रहे हैं कि इस पोजीशन में माँ और बच्चा है, बच्चे का मुंह पूरा इस तरह है कि निचला होठ स्तन के काले भाग के बाहरी तरफ सीमा रेखा पर है, तब आप समझ लीजिए मुंह की पकड़ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट प्लीज। और अब ये ध्यान से देखिए, शिशु का जो निचला होठ है वो किस तरह बाहर की तरफ इस तरह मुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सीमा रेखा से ऐसे टच होके बाहर निकला हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या होता है, कभी अगर माँ को चेक करना है कि सही में मुंह की अच्छी पकड़ है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? निचले होठ की तरफ स्तन ऊपर की तरफ दबाएं, नीचे से, ये नहीं कि एकदम से मुंह से स्तन छुड़ा लिया। फिर स्तन के निचले काले भाग का अधिकतर भाग मुंह में है और शिशु का निचला होठ, वो मैंने आपको बताया, इस तरह बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए सीमा रेखा पे, वो काले भाग के वहां। फिर शिशु की ठोड़ी जो है वो स्तन में गड़ी हुई होनी चाहिए, और जब अच्छी पकड़ हो तब हाथ स्तन से हटाकर शिशु के
पीछे रखें उसको सहारा देने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, कभी क्या होता है माँ ने एक स्तन से दूध पिला दिया, अब वो थक गई हैं या कुछ भी कारण हो सकता है तो दूसरे स्तन से पिलाती है। ऐसा नहीं करना है, एक स्तन से पूरी तरह दूध खाली हो जाए तभी दूसरे स्तन से पिलाना है। अब कैसे चेक करेंगे कि स्तन से दूध खाली हुआ है कि नहीं? आप अगर दूध जैसे हाथों से दूध निकालें, जब दूध बहेगा तो आपको पता चलेगा पतला है या गाढ़ा है। अगर दूध पानी जैसा पतला हो या फिर गाढ़ा हो तो उसी स्तन से पिलाते रहना है। नेक्स्ट प्लीज। कभी कभी सुनने में आते हैं कि पहला जब दूध पिलाना शुरू करते हैं तो आगे का दूध नहीं देना, पीछे का देना है, या बोलते हैं पीछे का नहीं देना, आगे का देना है। गलत है, दोनों दूध देने हैं, दोनों की अलग अलग जरूरत है। जो पिछला दूध है वो पूरा फैट से भरा हुआ होता है और जो आगे का है वो भी उतना ही जरूरी है क्योंकि उसमें प्रोटीन है। तो आप देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। काले भाग के जो बिल्कुल पीछे दूध है, देखिए हल्का व्हाइट हमने सफेद रंग का दिखाया है, ये जताने के लिए कि वो पानी जैसा पतला है, पर उसमें प्रोटीन है, वो भी देना है। और पिछले हिस्से में देखिए माँ के स्तन के गाढ़ा हमने कलर दिखाया है ताकि हम बता पाए कि ये दूध जो है ये फैट है इसमें। तो दोनों आगे का पीछे का दोनों दूध देना है। फिर एक एक करके हमेशा दोनों स्तनों से दूध पिलाना है। नेक्स्ट प्लीज। अब दूध पिलाने के बाद हमें डकार दिलवानी होती है। कई बार माँ क्या कंधे पे बच्चे को रख के जो धड़ाधड़ उसके पीठ पे मारती है, डकार कम निकलती होगी, बच्चा ज्यादा रोता होगा। वो ऐसे कराने की जरूरत ही नहीं है, कंधे पे रखना, पेट दबाना, ये सब नहीं करना है प्लीज। एक तरीका है डकार दिलवाने का और वो ये है, क्या करना है, शिशु को डकार तब दिलवानी है जब दूसरे स्तन से शुरू करना है, उससे पहले डकार दिलवानी है। अब मैं बताती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज। शिशु को आराम से गोदी में ले लें, फिर उसकी माँ की उंगलियों को चाहिए, माँ को चाहिए अपनी उंगलियों से शिशु का जबड़ा, ये एरिया, इसको पकड़ना है और फिर दूसरे हाथ से शिशु को थोड़ा सा आगे झुकाना है। नेक्स्ट प्लीज। अगर अब स्तनपान के टाइम कई बार हमने देखा है कि बच्चा सो गया, तो फिर क्या करना है, बच्चे को जगाना है, भूखा नहीं छोड़ना है कि अरे ये तो सो गया है इसको छोड़ दो अभी। तो बच्चे को थोड़ा सा जगाना है। जगाना कैसा, जोर जोर के नहीं हिलाना है, उसके पैरों पे गुदगुदी करनी है या उसकी पीठ पे गुदगुदी करना है, या फिर डकार दिलवाने की स्थिति में बिठा लो, या फिर कान के पीछे यहाँ पे हल्के से गुदगुदी करना है। मैंने देखा है कई बार माएं बच्चे को ऐसे हिला हिला के जगाती हैं, उसके पेट पे जोर जोर के हिलाती हैं। ऐसे नहीं करना है, तरीका है एक जो मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट प्लीज। अब कभी कभी क्या है कि स्तन पे से माँ को हटाना है बच्चे को, तो कैसा है, खींचना नहीं है एकदम से कि एकदम खींच दिया बच्चा एकदम जाग जाएगा। तो छुड़ाने के लिए क्या करना है, साफ उंगली, माँ के हाथ वैसे ही मैंने बोला स्तनपान से पहले हमेशा माँ को हाथ धोकर साफ करके सुखाने चाहिए। छोटी उंगली जो साफ हाथ की साफ उंगली है उसको थोड़ा सा मुंह के अंदर साइड से डालना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब क्या होता है, अक्सर माएं समझ नहीं पाती कि उसके बच्चे को भूख लगी है कि नहीं। मैं भी ऐसा सोचती थी कि जब बच्चा रोएगा तो इसका मतलब बच्चा भूखा है। ऐसा नहीं है, बच्चा कब भूखा है वो आपको संकेत दे रहा है, जब भी भूखा है वो संकेत दे रहा है। आप संकेतों को समझे, जो कि है शरीर इधर उधर मोड़ता है शिशु अपना, फिर जोर की जमाई लेता है या मुंह खोलता है, थूक निकालता है, फिर एंड में बच्चा रोने ही लगता है। तो ये जो 4 मैंने बातें बताई हैं इसको ध्यान में रखना है। और जैसे ही ये सब बातें आप देखो कि मेरा बच्चा मुड़ रहा है इधर उधर, जमाई ले रहा है, मुंह खोल रहा है या उसके मुंह से थूक आ रहा है, तो समझ लेना कि बच्चा भूखा है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप सोचेंगे कि अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि
बच्चे का जो मुंह पे स्तन पे मुंह की पकड़ अच्छी है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है। उसके गाल भरे भरे होंगे, मतलब कि ऐसे एकदम फूले हुए होंगे अंदर से, और बच्चा जब ज्यादा चूसेगा ना तो खड्डे पड़ते हैं। ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें बच्चे के गालों में खड्डे पड़े हुए हैं, और फिर जल्दी जल्दी दूध पीने की आवाज नहीं आती है, और दूध निगलते हुए ना बच्चे का जबड़ा जो है वो अच्छे से नीचे जाएगा, मतलब कि वो निगल रहा है, गटक रहा है दूध को। नेक्स्ट प्लीज। अब माँ सोचती है कि मैं पूरा दिन में कितनी बार दूध पिलाऊं। 24 घंटों में रात को 2 से 3 बार पिलाना चाहिए। उसकी भी एक वजह है, वो भी दीपाली मैडम आपको बताएंगी, और बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी वीडियोस में है। तो 2 से 3 बार रात को जरूर दूध पिलाना है, और दिन में 10 से 12 बार। अक्सर देखा गया है कि माँ कई बार दूध पिलाती है, कई बार मतलब सारा दिन दूध पिलाती रहती है। तो आपको क्या लगता है आपका शिशु भूखा है? बिल्कुल नहीं, आपका दूध पिलाने का तरीका गलत है, और साथ में वो निप्पल फीडिंग ले रहा है, एक ये, और दूसरा ये कि उसके मुंह की पकड़ ठीक नहीं है, दूध पूरा जा ही नहीं रहा। अब शिशु कब कब बड़ा होता है, उसके दूध की डिमांड कब कब बढ़ती है? जब शिशु 2 हफ्ते का होता है, 6 हफ्ते या और 3 महीने, दूध की डिमांड, दूध की मांग बढ़ती है उसकी। तो इस दौरान ज्यादा बार दूध पिलाना है। नेक्स्ट प्लीज। अब 6 महीने के बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराना है, और शहद देना और बाकी सब चीजें बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ स्तनपान कराना है। और बच्चे ने जैसे शिशु ने 6 महीने पूरे किए तो पूरक आहार देना शुरू करना है, और इस पूरक आहार के साथ साथ 2 साल तक स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। पूरक आहार भी जरूरी है, स्तनपान भी, लेकिन पहले के 6 महीने सिर्फ स्तनपान कराना है। नेक्स्ट प्लीज। अब कभी कभी क्या होता है कि दूध ज्यादा बनाने के लिए लोग पूछते हैं कि क्या दूं मैं, मतलब सपोज अगर माँ है तो बोलेगी मैं क्या लूं कि मेरा दूध और बढ़े और बढ़े। तो उसके लिए क्या है, उसको हम, और ये और बढ़ाने के जो चीज होती है उसको हम गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं। गैलेक्टोगॉग्स दूध बढ़ाता है माँ के शरीर में। और वो क्या होते हैं, क्या चीजें हैं, जैसे लहसुन खाएं सब्जी में मिला के, मेथी के बीज, मेथी के पत्ते, सौंफ के बीज, हलीम, सहजन के पत्ते, दिल के पत्ते और अजवाइन, ये सब आपको हर जगह आसानी से मिल सकता है। तो आपको ये सब खाना है, अपने खाने में डालना है खाना पकाते हुए। और लहसुन, सौंफ, ये सब आप डाल सकते हैं, मेथी के बीज डाल सकते हैं, मेथी के पत्तों की सब्जी बनाइए, अजवाइन अपने आटे में डालिए, रोटियां जब बनाते हैं आप उससे पहले आटा गूंथते हैं उसमें आप अजवाइन डालिए। इन सब चीजों से दूध बढ़ता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि पोषक आहार खाना है गर्भावस्था में, उससे पहले और किशोर अवस्था में, ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। और जब आप फिर दूध पिलाती माओ के लिए तो आपको जब शिशु हो तो शिशु भी स्वस्थ रहे, माँ भी स्वस्थ रहे। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ शाकाहारी खाना हमने बनाए हैं, मेरे टीम में पोषण विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बनाए हैं। मैं जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके इलाके में मिलने वाले मौसम के हिसाब से जो चीजें मिलती हैं उनके साथ आप खाना बनाइए। अगर ये इनमें जो बताया है इस वीडियो में ये चीजें आपके इलाके में नहीं मिलती तो घबराना नहीं, आपके इलाके में मिलने वाली चीजों से आप खाना बनाएं। 2 मिनट में आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। प्लीज प्ले दिस वीडियो। दूध पिलाती माओं के लिए मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे दूध पिलाती माओं के लिए सही पोषण की जरूरत, मांसाहारी खाना जैसे सहजन की डंडी के साथ चिकन की सब्जी बनाने का तरीका, मूंगफली लहसुन के मसाले में बनाया हुआ चिकन, नारियल के साथ मछली की सब्जी, अंडे के साथ मिली जुली सब्जियां। अब अगर आप मीट मच्छी सब खा लेते हैं तो उसके लिए भी वीडियो है। अगर आप नहीं खाते, आप सिर्फ सब्जियां खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो है। आप दोनों वीडियो देखिए।
नेक्स्ट प्लीज। दूध पिलाती माओं के लिए मांसाहारी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मेरे को इतना सब बता तो दिया है, मेरे को जो और आप मेरे मन में जो सवाल उठेंगे या मेरे जान पहचान में, आस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में कोई औरत है जो बच्चे को गलत स्तनपान करा रही है, आप उसको बताना चाहते हैं कि इस तरह नहीं करना है, फिर आपको और भी कुछ शंकाएं होंगी, तो आप क्या करिए, ये जो नंबर मैंने दिया है 1800-26-777-82, इस नंबर पे फोन करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका फोन पैसा नहीं लगेगा, आप इस पे फोन करिए, हम आपको दोबारा कॉल बैक करेंगे, हम आपको फोन करेंगे, हम आपको पूछेंगे कि क्या तकलीफ है, क्या सवाल है आपका, हमें बताइए, और फिर हम आपकी मदद करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। नेक्स्ट प्लीज। Can we put this number on chat? Yes, yes. तो ये कुछ अभी हमारे पास कुछ 6 भाषाओं में है। हिंदी तो है, गुजराती, मराठी, तमिल है, तेलुगु है। तो जैसे अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं या आपकी कोई सहेली है, आस पड़ोस के लोग हैं जो ये भाषा बोलते हैं, तो आप उनको बोलो कि आप इस नंबर पे फोन करो। आप जैसे अगर मेरे पड़ोस में कोई गुजराती माँ है और वो दूध पिलाती है, या वो गर्भावस्था में है, या वो नई शादी हुई है उसकी, और अब आपको लग रहा है कि हाँ नई शादी हुई है, बच्चा होगा, तो आप उनको बोलो कि इस नंबर पे फोन करो, और गुजराती भाषा में ही आपको जवाब भी दिया जाएगा। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि किन किन बातों का हमको जवाब मिलेगा, तो ये है हमारे पास श्रेणियां, कैटेगरी जिसे बोलते हैं। समय से पहले पैदा हुए शिशु को कैसे संभालना है, क्या किस तरह उसको संभालना है, क्या देना है, कैसे देना है, देना तो दूध ही है, लेकिन किस तरह माँ उसका ध्यान रखे। कुपोषित शिशु, जो कि वजन जिनका कम होता है। स्तनपान, मतलब माँ को जितने भी स्तनपान से जुड़े सवाल हैं वो सब इस नंबर पे आपको मदद मिलेगी। शिशु पोषण, पूरक आहार, स्तनपान, बच्चे को कब दें, कितना दें, किस तरह दें, और खाने में पूरक आहार जब शुरू करना है, बहुत सवाल होते हैं माँ के मन में कि कौन सा खाना दूं, सिर्फ दाल भात से काम नहीं चलता है, बहुत तरीके के खाना देना है, धीरे धीरे शुरू करना है, पहले कुछ खाना देना है, फिर कुछ देना है, फिर कुछ देना है। देने से पहले हमें देखना है कि इससे मेरे बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही है, और थोड़ा थोड़ा देना है, चम्मच की नोक जितना, फिर थोड़ा बढ़ाना है, फिर थोड़ा बढ़ाना है। तो पूरक आहार, अब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, एकदम से उसको रोटी देनी शुरू नहीं करनी है, और सिर्फ रोटी देनी है ये भी नहीं करना, सिर्फ दाल भात देना है बिल्कुल भी नहीं, बाकी खानों में जो पोषक तत्व हैं वो कैसे शरीर में जाएंगे बच्चे के। तो वो सब हम, वैसे तो वीडियो बने हुए हैं, आपके पास सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप जहां भी आपको डाउट हुआ क्लिक किया, देखा, सीखा और अपनी जिंदगी में अपनाया। फिर भी कहीं पे अगर आपको डाउट हो तो आप कभी भी इस नंबर पे फोन लगाएं, बिल्कुल फ्री है, आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। फिर दूसरा, पूरक आहार मैंने आपको बताया, आपको सारी मैंने पढ़ दी है। अब कौन कौन है जो आपको जवाब देंगे, ऐसे कोई भी नहीं जवाब दे सकता। इस नंबर पे जो बात करेंगे आपसे वो डॉक्टर हैं, स्तनपान सलाहकार हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई है, कई ट्रेनिंग स्तनपान कराने के लिए। फिर डाइटिशियन है, फिर पोषण विशेषज्ञ हैं, नर्स लोग हैं, जो सिस्टर्स जो हॉस्पिटल में होते हैं वो हैं, फिर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें हम क्षेत्र कार्यकर्ता बोलते हैं, ये सब लोग इस नंबर पे आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। और कई बार जैसे फोन पे नहीं समझ में आया तो वो जो मैंने आपको वीडियो प्ले करके दिखाए हैं, वही वीडियो वो बोलेंगे कि ये देखो, और ये भी हो सकता है कि वो आपको सिर्फ आपके फोन पे एक चित्र भेजेंगे कि ये देखो। तो आप हर किसी को अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सहेलियों में, सबको ये नंबर दें, वो भाषा कोई भी बोलते हो, पर आप बोलिए इनको ये नंबर पे फोन करें। नेक्स्ट प्लीज। अब मैंने नॉर्मल स्तनपान के बारे में तो बात कर ली, अब क्या है, कोविड-19 फैला हुआ है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, हिंदुस्तान में भी फैला हुआ है,
कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हो रहा है। तो उसमें क्या है, कई माएँ जो स्तनपान करा रही हैं उनको भी कोविड हो गया है या कोविड हुआ है, तो वो क्या है, बच्चे को दूध ही नहीं दे रही है। ऐसे नहीं करना है। अब 6 महीने से नीचे तो स्तनपान के अलावा और कुछ करना नहीं है। तो आप दूध नहीं दोगे तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो अब क्या करना है, ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में सब बातें बताई हुई हैं। अगर माँ कोविड में है तो किस तरह दूध देना है, किन बातों का ख्याल रखना है, बच्चे को कैसे संभालना है। इसमें ये भी बताया है, कई बार माँ को पता नहीं होता कि नो प्लीज गो बैक, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। या तो माँ को पता ही नहीं है कि कोविड फैल कैसे रहा है। इसमें आपको वो भी पता चल जाएगा, बीमारी के लक्षण क्या हैं और कोविड-19 में स्तन के दूध का महत्व क्या है। ऐसा नहीं करना है कि माँ को कोविड है तो फिर दूध नहीं देना है। अभी भी स्तन के दूध की बहुत जरूरत है। फिर मैंने आपको जैसे बताया, जिन माओं को स्तनपान कराती माओं को कोविड है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, और उनके बच्चों के लिए भी है। तो आप ये वीडियो देखिए। मैं 1 मिनट का मैं चलाती हूँ, आप देखिए जरा। नेक्स्ट प्लीज। कोविड-19 के दौरान स्तनपान कराने के विषय पर बने इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोविड-19 क्या है, कोविड-19 के दौरान स्तनपान कराने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं। आइए पहले समझते हैं कि कोविड-19 क्या है। बस थैंक यू। कोविड-19 एक Next, संक्रमित बीमारी है। नेक्स्ट। कोविड-19 नेक्स्ट। अब आप ये सब जो वीडियो देख रहे थे, और भी वीडियो है एक्चुअली 72 वीडियो है, और कुछ 40-42 वीडियो और आने हैं। हम बना रहे हैं, वो वक्त लगता है। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे, इतनी सुंदरता से हमने इसके पीछे का साइंस बताया है। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा अब आप पानी पिए, अब आप ऐसे बैठे, अब आप पैर को सहारा दें। क्यों? हर माँ के दिमाग में आता है, अरे मैं पानी क्यों पीऊं इतना, मैं टेक लगा के क्यों बैठूं, मैं अगर बच्चे को लिटा के दूध पिला रही हूँ तो मैं ऐसे क्यों बैठूं, ऐसे क्यों लेटूं। उस हर क्यों का जवाब इन वीडियो में है। अक्सर बहुत वीडियो आप YouTube पे देखेंगे, उन्हें सब बताया जाता है ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बट हमारे इन वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों करो। तो ये सारे वीडियो YouTube पर है। अब आपके पास स्मार्टफोन्स हैं तो आप देखिए YouTube पे जाके, ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे, ये आप टाइप कीजिए YouTube में और फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारे यहाँ से कोई वीडियो रिलीज होता है आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा अरे स्पोकन ट्यूटोरियल एक और बना है और वो मुझे देखना है। मुझे इसलिए देखना है मैं अपनी भी मदद कर सकूं, आप अपने आसपास के माओं की मदद कर सकूं। तो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप YouTube चैनल पे जाइए और हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे ये टाइप कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, आस पड़ोस में जितने लोग हो सके, आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, अभी तो कोविड करके नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब भी आप ट्रैवल करते हो या आसपास आप देखते हो, म्यूट है, आसपास आप देखते हो कि रास्ते पे देखते हो कि हाँ कोई माँ है जो स्तनपान करा रही है, या प्रेग्नेंट है जो गर्भावस्था में है, या कोई नई नवेली दुल्हन है, उन सबको बताओ कि ये देखो अपने शरीर के लिए, और अपने आगे जो आपके बच्चा होगा वो तंदुरुस्त रहे, एकदम दिमाग से तेज, शरीर उसका एकदम भरा पूरा हो, उस सब के लिए आप ये वीडियो देखिए। नेक्स्ट प्लीज। अब ये दो जो नाम है, ये बहुत खास लोग हैं दो। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये आप सोचते होंगे कैसे बनाया, ऐसा नहीं कि किताबों में ढूंढ के बनाया। ये जो ऊपर नाम है डॉक्टर रूपल, ये इन्होंने 12,000 बच्चों के साथ काम किया है। 12,000 बच्चे बहुत बड़ा नंबर है ना। 12,000 बच्चों की सेवा की, माओं की सेवा की, फील्ड में जाकर, और फिर उधर से जो उन्होंने सीखा है,
प्लीज म्यूट ना प्लीज। तो वो डॉक्टर रूपल जिन्होंने 12,000 बच्चों के साथ काम किया है, उधर से उन्होंने सीखा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही है, किस तरह से बनाना है ट्यूटोरियल, किस तरह माँ की मदद करनी है स्तनपान के दौरान, गर्भावस्था के दौरान। ये सब उनका बताया हुआ है जो हम लोगों ने वीडियो में कन्वर्ट किया है। और ये नीचे बहुत ही खास इंसान है, इनका नाम है प्रोफेसर कन्नन मोदगल्या, ये आईआईटी में प्रोफेसर हैं। माँ और बच्चे को जो आज की जरूरत है पोषण की, वो ये समझते हैं और इन्होंने डॉक्टर रूपल को अपने टीम में लाया और उनके साथ हम लोग वीडियो बना रहे हैं। that's all. So अब इतना आपने सुना मेरी बात, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो जरूर देखेंगे, अपने लिए देखेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए देखेंगे और हर माँ की मदद करेंगे, चाहे वो माँ हो, स्तनपान माँ हो, या गर्भावस्था में हो, या नई नवेली दुल्हन हो, या शादी की उम्र जैसे 18 साल की। हमारे भारत सरकार बोलते हैं 18 साल से पहले शादी नहीं करनी है लड़की की, तो ये भी जरूरी है कि 18 साल हो गए, अब शादी की बात चल रही है, तो सबसे पहले लड़की को अपने पोषण पे ध्यान देना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। तो आप ये नंबर सब जगह बताएं, जो मैंने 1800 वाला नंबर बताया है, फ्री है एकदम, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, हम लोग आपकी मदद करेंगे। और जो YouTube मैंने आपको चैनल बताया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से ही 52 कुछ ट्यूटोरियल है वो देखिए, आपके काम का क्या है। अगर आप गर्भावस्था में है तो देखिए, अगर स्तनपान में है तो वो वाले देखिए, और अगर आपकी शादी होने वाली है या आप उस एज में हैं तो उस एज के हिसाब से देखिए। हेलो, अब दीपाली मैडम जो मैंने आपको सिखाया है, वो दीपाली मैडम आपको एक डॉल, एक बड़ी सी गुड़िया है उनके पास। हाँ, अरे कम से कम बोल। जो दीपाली मैडम है उनके पास एक बड़ी सी गुड़िया है, उस गुड़िया के साथ वो डेमो देंगी। तो अब हम उनका डेमो देखेंगे। दीपाली, ओवर टू यू। महिला, आई एम डन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेला? ठीक से आ रही? एको हो रहा है दीपाली, इको हो रहा है मेरा। आपने ईयरफोन नहीं लगाया? मैम दिखाते हैं तो होगा। मैं खड़ी हो जाऊंगी ना तो फिर जरा प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी आ रही है मेरी आवाज? या। अच्छा, अगर किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में, आपसे कुछ अगर पूछना है बीच में तो आप पूछ सकते हो। पहले मैं आपको, और जिनको बात नहीं करनी है वो प्लीज म्यूट में रखिए खुद की आवाज, तो आपको समझ में आएगा। जो भी अभी डॉक्टर बेला ने बताया आपको कि किस तरह से तकनीकें बताई, उन्होंने क्रॉस क्रेडल होल्ड जो है उसकी तकनीक आपको बताई, जो बहुत आसान है और हम 10 सालों से उसकी प्रैक्टिस फील्ड पे कर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स भी करती हो ना, वैसे एक बार खाली तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं अभी आपको वो डॉल के साथ दिखाऊंगी, ताकि आपको जब आपके पास बच्चा है तो फिर आप वो आसानी से आपके बच्चे के साथ कर सकते हैं। आपको संगीता जी, आपको कुछ पूछना है? पता नहीं, इनको शायद कुछ पूछना है। दीपा मैम। हाँ यार, संगीता जी मैं आपको कब से म्यूट कर रही हूँ, अब मैं म्यूट करते हैं आप अनम्यूट कर जाते हो, प्लीज जरा म्यूट पे ही रखिए। संगीता मिश्रा। या दीपाली मैम प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, मैं एक मिनट में जरा मेरा ये चेक कर लीजिए। अभी दिख रहा है डॉल? हाँ, दिख रहा है दीपाली। अच्छा, जैसे ही आपका बच्चा है, हमेशा हम कैसे करते हैं कि क्रेडल होल्ड में बच्चे को पिलाते हैं, मतलब जो पारंपरिक हमारा जो है ट्रेडिशन, वो इस तरह से हम बच्चे को पिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत बार बच्चा नीचे उसकी गर्दन झुक जाती है, तो बच्चे को निगलने में बहुत तकलीफ होती है और जल्दी बच्चा छोड़ देता है। और ये देखिए, इसके पैर भी ऐसे लटके हुए हैं और उसको पूरा आपको दिख रहा होगा कि ऐसे स्थिति में बिल्कुल भी बच्चे को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। माँ का हाथ सिर्फ यहाँ तक आता है और पैर नीचे छूट जाते हैं, बच्चा एकदम उल्टा। और आप अभी देख सकते हैं कि देखिए बच्चा कैसा है, इसकी गर्दन इस तरफ और
मतलब शरीर एक तरफ। तो ऐसे तो हम खाना नहीं खा सकते ना कि थाली सामने ना है और आप बाजू में देख के खा रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत बार बच्चे को निप्पल फीडिंग हो जाता है, मतलब वो सिर्फ निप्पल से दूध पीता है और फिर वजन नहीं बढ़ता। इसीलिए क्रॉस क्रेडल एक बहुत आसान तकनीक है जिसकी तरीके से बच्चे को बहुत आसानी से दूध पिलाने में हेल्प हो जाएगी। तो ये बच्चा है, तो क्रॉस क्रेडल में अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेफ्ट साइड को उससे मतलब फीडिंग करूंगी। तो अगर लेफ्ट साइड से फीड करना है तो वो जो मेरा राइट साइड है उसके आर्म में ऐसे बगल में मैंने पूरे पैर बच्चे के, देखिए प्रॉपरली पूरे पैर ऐसे एकदम ठीक से पकड़े हुए हैं। बताओ मेरे को नीचे की साइड में जब आएगा ना, देखो वो वाला कंटिन्यू। Connectivity lost. She'll join. Let us wait for 2 minutes. Yeah, okay. Yeah, please. You are Deepali ma'am, you are on mute. Yes, okay. तो आप जब भी बच्चे को पास में लाते हो तो उसको थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ नेक मतलब मैं नीचे, अब जब भी पानी पीते हो तो ऐसा ऊपर मुंह होता है, तो इसलिए बच्चे का भी एक्सटेंशन ऑफ नेक होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैंने बच्चे को पकड़ा और एकदम प्रॉपरली उसको पेट से पेट है बच्चे का और एक्सटेंशन ऑफ नेक। अभी बारी आती है कि ब्रेस्ट मॉडलिंग की। पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि जब ब्रेस्ट को पकड़ना है, अभी मैं मेरा लेफ्ट साइड का हाथ का इस्तेमाल करूंगी। तो लेफ्ट साइड से जैसे ही बेला मैडम ने बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू शेप में, मतलब 3 उंगलियां निप्पल से यहाँ के बाजू में और 3 उंगलियां यहाँ पे, तो वो एकदम सिमिलर होना चाहिए। और ये यू शेप में मैं उसको एकदम अच्छे से दोनों साइड से उसको प्रॉपरली एक समान उसको दबाव आना चाहिए। तो ऐसे दबाते ही उसकी साइज छोटी हो जाएगी और वो बहुत आसान हो जाएगा कि बच्चे के मुंह में जाने के लिए। और ये देखिए इस तरह से बच्चे का नेक एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे दिखाया, मैं पास में लाना चाहूंगी कि जैसे ही बच्चे ने मुंह खोला तो ये आप पूरा नीचे का काला भाग बच्चे के मुंह में जाने में आसानी हो जाएगी। और जैसे ही अगर आपका लगता है कि पूरा मुंह मतलब खुल गया है और नीचे का काला भाग बच्चे के मुंह में गया है, अगर चेक करना है तो यहाँ से दबा के, नीचे की साइड से दबा के आप चेक भी कर सकते हो कि मुंह में गया है कि नहीं। और जैसे ही मुंह में नीचे का काला भाग पूरा गया तो आप ये हाथ निकाल के बच्चे को पूरा प्रॉपरली सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चे को दूध पिलाने का। कुछ डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा, थोड़ा सा 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। हेलो, हाँ, आई एम डन मैम। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये सबसे अच्छा फोरम है बात करने के लिए। सिर्फ लेडीज है और सामने इतने अच्छे फैसिलिटेटर बैठे हैं जो आपको आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्योंकि आपको फायदा इसलिए होगा कि हम बहुत 10 सालों से एकदम कम्युनिटी में जाके, मतलब जो गांव की माएँ होती है या ट्राइबल की होती है, मतलब आदिवासी हो या एकदम बिल्कुल ही इंडिया के जो एकदम अंदर के गांव होते हैं उनकी माएँ हैं, और अर्बन भी, मतलब जैसे कि शहरों में भी हम काम करते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है मतलब आप हमें पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सब लेडीज है तो आपको जो भी है, अगर कभी कभी ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है, मतलब उसको इन्फेक्शन हो जाता है, अगर ऐसे कुछ आपको लगता है
या आपको लगता है कि मुझे 3 महीने हो गए फिर दूध आने में दिक्कत आ रही है, तो जो भी आपके सवाल है प्लीज यहाँ पे आप पूछिए ताकि हम आपको बता सके। मैम मैं क्या पूछ सकती हूँ? यस यस डेफिनेटली। अच्छा मुझे बताइए कि मैम जैसे बहुत साल पहले आई लॉस्ट अ बेबी, मेरी बेबी एक ऑन द टाइम ऑफ बर्थ आई लॉस्ट हर। तो उसकी वजह से जो मेरा दूध था वो ढंग से सूखा नहीं और जो मेरे आर्म पिट्स हैं वहाँ पर जमा हो तक गया, क्योंकि तभी मुझे जॉन्डिस भी हुआ था। तो डॉक्टर मुझे वो सही मेडिसिन नहीं दे पाए जो दूध सुखाने के लिए होती। तो अभी वो जो गांठ है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि इज इट ओके? मतलब अगर जनरली देखा जाए तो आप अगर गायनेकोलॉजिस्ट का अगर सलाह लेते हैं, क्योंकि कोई भी गांठ अगर हो तो उसका प्रॉपरली डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी वो गांठ चली जाती है और दूसरी अगर आपको वो गांठ आई है तो आप प्लीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के जाके आप थोड़ा उसका चेक करवाइए और फिर मतलब थोड़ा देखिए, क्योंकि इतनी दूर से गांठ कैसी है वो मुझे मतलब समझ में नहीं आएगा। जी मैम, तभी तो मैंने दिखाया, तभी तो मैंने दिखाया था। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि वो दूध सूख जाता है और वहीं पर रह जाता है, वो पूरी तरह से गया नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट मुझे पेन रहता है कभी ना कभी वहाँ पर, तो मन में वो ख्याल आते रहते हैं। पर जब भी दिखाती हूँ डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। अच्छा, आपका सेकंड बेबी हुआ, मतलब उसके बाद आपने ब्रेस्ट फीड किया किसी बेबी को, सेकंड बेबी को, या अभी चांस नहीं लिया? नहीं किया और वो भी ठीक है। अच्छा, ओके देन नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक। अगर उसका साइज बढ़ते जा रहा है तो यू हैव टू मॉनिटर। ओके, थैंक यू मैम। यस। आवाज क्लियर नहीं है। कुंदा जी, आपका आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रहा है ना? बहुत आहिस्ता। आप अगर चैटिंग पे लिखते हैं तो भी दीपा मैम हमें बताएंगी, अगर आप उस तरह से अगर लिखते हो सवाल। अभी आ रहा है मैम? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, कोई लेडीज का सब पोषण मूल्य हम लोग देते हैं, वो सब अच्छे से खा पी लेते, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, पानी कमी होती है या फिर बच्चे में कुछ व्यंग आ जाता है या कुछ उनका अंग विकसित होता नहीं, ये किस कारण होता है? उसके बहुत भिन्न भिन्न कारण हैं, क्योंकि अगर आपको फॉलिक एसिड जो होता है, जो पहले 3 महीने या जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसके पहले ही उसके शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी हमें कब पता चलती है कि 2 महीने बाद, तो उसके पहले ही हमारा न्यूरल ट्यूब, मतलब जो पिछले का न्यूरल ट्यूब को हम बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी तो माँ को जब पता ही नहीं है वो प्रेग्नेंट है उसके पहले ही बनना शुरू हो जाता है। अगर तब फॉलिक एसिड की अगर कमतरता है, डिफिशियंसी है, तो बहुत सारे न्यूरल प्रॉब्लम्स बच्चे में आ जाते हैं। तो उसके मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि एडोलेसेंस से फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट है या नेचुरल डाइट थ्रू उनका काउंसलिंग करना चाहिए कि माँ के शरीर में अगर किसी का डिफिशियंसी रहा तो बच्चे में आगे जाके न्यूरल प्रॉब्लम आते हैं। आगे जाके दूसरा प्रॉब्लम है कि बहुत बार माएँ आयोडीन का सेवन नहीं करती है, तो आयोडीन अगर नहीं है शरीर में तो माँ में भी वो आयोडीन की कमी हो जाती है और फिर बच्चों में व्यंगता आ जाती है। तो वो सारा मतलब बहुत बार ऐसा है कि न्यूट्रिशनली माँ को अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो बच्चों में वो आ जाती है, और थोड़े मतलब 2-3% है कि वो जेनेटिकल, मतलब अगर कुछ जेनेटिक्स अगर प्रॉब्लम है तो है, लेकिन हाँ, लेकिन वो बहुत बार माँ का न्यूट्रिशनल पे बहुत, इसीलिए बेला मैम ने आपको सबसे पहले दिखाया कि प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसका पूरा वो खुद एकदम न्यूट्रिशनली हेल्दी चाहिए, फिर वो बच्चा कंसीव करने का सोच सकती है।
और एक पूछना था मुझे। हाँ हाँ बोलिए। मेरे बच्चे तो अभी बहुत बड़े, काफी बड़े हैं, लेकिन मेरा प्रेगनेंसी में जब से मुझे 5वां महीना लगता था तो अपने आप दूध आ जाता था। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले अच्छी बात है, पहले से आ रहा है आपको, तो क्यों होता है ऐसा? हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 2 हार्मोन पे काम करता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन जो है वो दूध बढ़ाने, मतलब दूध सिक्रेशन का काम करता है, उससे दूध आता है। तो वो अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है किसी माँ में ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो 5वें महीने में ही उसको दूध मतलब मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो इट्स वेरी कॉमन और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मतलब 5 साल के बाद भी अगर प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा है तो मे बी देयर आर चांसेस ऑफ मिस कैरेज, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा दिखाने की ज़रूरत है। नहीं, अभी नॉर्मल सब ठीक है। अच्छा, थैंक यू मैम। किसी ने मुझे यहाँ पे सवाल किया है, एक मिनट। वही सवाल पूछ रही थी। हाँ, अच्छा, या इट्स देयर ऑन माय स्क्रीन। बेबी को कितने साल तक दूध पिलाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो बोलते हैं, मतलब एकदम पूरा स्तनपान पे बेबी 6 महीने तक चाहिए, उसको 2 साल तक कंटिन्यू कराना ही कराना है। अभी तो आजकल तो टॉडलर मतलब 5 साल तक भी आप बच्चे को पिलाते हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पूरा हम बोलते हैं कि इट्स अ कंप्लीट फूड। तो अगर आप पिलाते तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 2 साल तक के लिए आपने वो कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, मेरे बच्चे 3 साल तक पिए। हाँ, वेरी नाइस मैम, क्योंकि उनका IQ फिर अच्छा ही होगा। क्योंकि जो DHA जो होता है वो कितना भी फॉर्मूला में लिखा हो, लेकिन इट्स नॉट प्रूवन कि उससे कुछ इफेक्ट है, लेकिन जो माँ के दूध में DHA है उसका बहुत डायरेक्टली कनेक्शन होता है बच्चे के साथ। तो वेरी नाइस, गुड। किसी के अगर सवाल है तो हाँ, या वेलकम। और कोई सवाल है? I have a question. My children are grown up now, but this is a problem that I had faced, and I have come to know that others mothers also have this problem. My babies I had twin babies, and they were in NICU. So by the time they came to me, they were already being fed bottle fed, not bottle fed, but with spoon with formula. Formula, top feeding. And then I continued also giving. I tried giving them breast milk along with formula because of other issues, health issues that I had. But any suggestion for mothers who want to now stop, giving formula and move into completely breastfeeding? What is your suggestion? Is it possible? What is your suggestion, ma'am? Yes, it's 100% पॉसिबल थिंग। बहुत आसानी से हम रिलैक्ट मदर को कर सकते हैं। उसके लिए हमारा IIT का बहुत अच्छा वीडियो है कि हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क बाय फिजिकल मेथड। अगर आप वो मदर को दिखा सकते हैं तो उसमें रिलैक्टेशन बहुत आसानी से होता है। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस सामने वाले को भी और मदर के पास चाहिए, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर आप वीडियो देखते हैं, रिलैक्ट हमेशा हम विदाउट मेडिकेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए लैचिंग होना बहुत ज़रूरी है, फ्रीक्वेंट फीडिंग, लैचिंग, कुछ मसाज के टेक्निक्स हैं, जैसे गैलेक्टोगॉज खाने में खाने चाहिए। जैसे 4-5 उसकी तकनीकें हैं, वो वीडियो में पूरा डिटेल बताया है, तो अगर आप वो देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास इतने सारी मदर है, उनको हम रिलैक्ट करवाया और बहुत अच्छे से वो लोग अभी काम कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Yeah. I wanted to ask one question. So it's always shown in television that as soon as the baby takes birth, in first hour only the milk has to go. That first hour milk is very nutritious for the child. But till now, what I have seen in hospitals is that by the time that child is taken to mother, already 3-4 hours or probably more hours have been passed. And after that, the mother will try to feed. So what to do with that first hour thing that which is always said? In many hospitals I have seen that even doctors don't take that initiative to take that child in first hour to the mother. उसको बोलते हैं, इट्स ऑल स्कैम एक्चुअली मैम। वेरी सैड टू से दिस, बिकॉज उनका पूरा एक साइकिल है। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि जितना जल्दी वो माँ को लेट देते बच्चा,
तो दे प्रमोट लैक्टोजन, और मतलब उनको कुछ लैक्टोजन पे भी उनको कुछ बोलते हैं ना, कुछ पैसे या परसेंट मिलते हैं। तो वेरी सैड, बट हमने बहुत ऐसी माएँ देखती है, डॉक्टर देखे हैं कि वो तुरंत बच्चे को बोलते हैं कि द बच्चा इज गेटिंग हाइपोग्लाइसेमिक और स्टार्ट द लैक्टोजन इमिडिएटली। ऐसा कभी नहीं, इतने सालों से नेचुरल फीड करने वाले हाइपोग्लाइसेमिक नहीं हुए और इनके बच्चे कैसे हो जाते। तो वेरी इट्स माल प्रैक्टिस एवरीथिंग इज। तो इसीलिए वी आर ट्राइंग दिस ईयर, वी आर ट्राइंग टू डू द सर्टिफिकेशन कोर्स। जो हमारी माएँ हैं जो प्रेगनेंसी कब में आती है, उनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे कि शी इज द मतलब वो खुद सर्टिफाइड है और शी नोज द ब्रेस्ट फीडिंग का A to Z। तो इसीलिए जब उसके डॉक्टर बोलेंगे कि आप नहीं ब्रेस्ट फीड मत कराओ और लैक्टोजन कराओ, तो फिर वो खुद बोलेगी कि सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं मेरे बच्चे को ब्रेस्ट कॉल करवाऊंगी और मैं बच्चे को दूध दूंगी। तो वो थोड़ा हमें माँ को ही एम्पावर करना पड़ेगा। और फैमिली को भी मतलब फैमिली कैन टेक अ स्टैंड कि हमें अभी बच्चे को लेके जाना है माँ के पास। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट फैमिली। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी को कुछ पूछना है? मैम कैन आई आस्क? या प्लीज। तो मैम मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर बेबी जैसे प्रीमेच्योर होता है तो वो बहुत ही कमजोर और कम वेट का होता है, तो वो सक भी नहीं कर पाता है मम्मी का दूध। तो उसमें फिर डॉक्टर्स फिर बोलते हैं कि आप अपना दूध पिलाते रहिए, लेकिन क्योंकि बच्चे के अंदर पोषण नहीं जा रहा है तो आप टॉप फीड दीजिए। तो उसमें फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत माँ के साथ ये दिक्कत आती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। सबसे पहले तो बच्चे को मतलब आपके पास लाके ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बच्चा कुछ अगर उसका कपड़ा है या कुछ उसका ऐसा है सेंसेशनल, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, माँ का रिलीज हो जाए, मतलब लेट डाउन रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं, उसका फोटो कुछ है। क्योंकि बहुत बार बच्चा इंक्यूबेटर में होता है और माँ दूसरे हॉस्पिटल में होती है। तो उस समय माँ को ऐसे मतलब उसको थोड़ा सा अगर इमोशनली बच्चे के स्मेल आया या कुछ ऐसा हुआ तो उसका I think we lost connectivity. Yeah, lost connectivity. Yeah. Well, let's wait for a minute. She will join. She's there. Probably some problem with connectivity. Yes. Yeah, she's back. Yes, मैम वो आंसर नहीं समझे। बोलिए मैम वी लॉस्ट कनेक्शन, तो आप फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? अच्छा, माँ खुद अपना दूध हाथ से एक्सप्रेस करके बच्चे को मतलब वो निकाल के उसको ऊपर से वो दे सकती है कि फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। जितना माँ दूध निकालेगी उतना दूध आएगा। अगर बच्चा पास में है तो वो खुद पहले ब्रेस्ट फीड कराए बच्चे के साथ, और जैसे ही बच्चे ने ब्रेस्ट फीड, जैसे ही माँ बच्चा मतलब बच्चे के पास लैचिंग हो जाता है ना, तो माँ का ऑक्सीटोसिन लेवल मतलब दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत आसानी से माँ मतलब मिल्क एक्सप्रेस करके ऊपर से बच्चे को दे सकती है। तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। यस मैम। यस सरिता। मैम एक्चुअली मेरे बच्चे भी बड़े हैं, बट मेरी कुछ साल पहले, मतलब मेरी छोटी बेटी अभी 19 साल की है, बट 5-6 साल पहले मुझे अचानक से दोनों ब्रेस्ट से दूध आने लगा था। सो मैंने गायनिक के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब ट्रीटमेंट कराया, बट 1-1.5 साल तक वो ट्रीटमेंट चल रहा था। सो अभी वो बंद हो गया है, बट अभी ये होता है कि कभी कभी अचानक से दोनों ब्रेस्ट में पेन होता है, और फिर उन्होंने एक गोली मुझे रेफर की है। वो गोली मैं खाती हूँ तो फिर 1-2 महीने के लिए रिलीफ होता है, फिर वापस मतलब पहले जितना होता था इतना दर्द नहीं होता है, बट जब कभी कभी पीरियड्स के पहले वगैरह
थोड़ा सा दर्द होता है। सो कुछ नहीं, पीरियड्स के पहले और बाद में ब्रेस्ट में पेन्स होना ये बहुत मतलब नॉर्मल है, क्योंकि बहुत हम महिलाएं देखते हैं कि उनको, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में या निप्पल में दर्द होना वो कॉमन है। लेकिन बहुत ही आपको ज़्यादा हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि बस मुझे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में नहीं, कभी भी ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेमोग्राफी आफ्टर 30 तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप करा दीजिए। मतलब ब्रेस्ट का मेमोग्राफी की है मैंने, सोनोग्राफी और मेमोग्राफी दोनों भी हुआ है। अच्छा। उसमें कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट है उनके। उन्होंने बोला कि बट अभी पहले 5-6 साल पहले तो लिटरली मतलब दूध जैसा मतलब निकलता था और बहुत टाइट होता था, टाइट होते थे दोनों ब्रेस्ट और बहुत पेन बहुत होता था। तो हार्मोनल लेवल कभी कभी मतलब मैंने बोला ना, जैसे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि तो थोड़ा आप अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हार्मोनल टेस्ट कराना तो वो आप करा सकते हो। अगर सिर्फ मेंस्ट्रुअल के टाइम अगर होता है तो दैट इज वेरी नॉर्मल, तो चिंता करने की बात नहीं है। थायराइड का भी चेकअप किया तो थायराइड भी नहीं है, तो टेस्ट तो सारे हो चुके हैं, सो नॉर्मल है। बट अभी कभी कभी मतलब 6-7 महीने के बाद एक आध बार होता है, तो नोवैक्स करके एक गोली है जो प्रेफर की है मेरे लिए, तो वो एक गोली ही खाती हूँ तो मतलब रिलीफ हो जाता है कि 3-4 महीने तक कुछ नहीं होता है ऐसे। बट पहले बहुत होता था। ठीक है, अभी तो आपने टेस्ट करवाया तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आप मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। यस यस यस, थैंक यू। Deepali ma'am, I would like to ask one question, because either both working mothers, even I faced that problem when my son was born. So working mothers ka that time, at least now government has like 6 months maternity leave is given. That time it was 3 months. So what happened is abhi regularly feeding nahi hota, to then means 3-4 months made automatically after I think 5 months this breastfeeding thing stopped for me. So I couldn't lactate my son that way. So what is the problem? Like for working women, what do you suggest? हमेशा एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दूध को अगर एक्सप्रेस करके अगर घर में रखते हो और कोई मतलब केयर टेकर घर पे है तो वो ऊपर से बच्चे को दे सकता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे माँ का दूध 6 घंटे के लिए रहता है। उसका वीडियो भी सेपरेटली बनाया है कि कितने आवर्स रहेगा। मतलब आप 12 घंटे के लिए जाते हैं तो नॉर्मल फ्रिज के कंटेनर जो होते हैं, फ्रिज का दरवाजा जो डोर होता है दरवाजे के साइड में रखते हैं तो 10 आवर्स के लिए दूध होता है। और अगर आप बाहर की 2 दिन मतलब जाना चाहते हैं तो डीप फ्रीज में भी दूध रहता है। उसका नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए हमने बहुत तकनीकें अच्छे से बताई है। तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करके जब भी आपको लगता है एक्सप्रेस करना, तो आप जितना दूध निकलता है वो इतना कंटेनर्स में रख के वर्किंग मदर एकदम आराम से जॉब पे जाके बच्चे को, लेकिन बॉटल फीड का आदत नहीं लगाना है। उसको ऊपर का जो एक आता है ना, ऐसे छोटा चमचा आता है, स्पून आता है, वो स्पेशल स्पून फीडिंग का, तो उससे आप कर सकते हो, या फिर हमें हमारा कटोरी और जो चमचा होता है उससे भी करा सकते हो। और जैसे ही जब आप ऑफिस से आते हो तो ब्रेस्ट फीड करा देना बच्चे को। तो वो बहुत आसान तरीका है, मतलब आप मदर टेंशन में नहीं होगी कि मेरा बच्चा भी क्या पिएगा घर पे। तो एक्सप्रेस इज द बेस्ट थिंग, और जितना एक्सप्रेस करेंगे आप तो दूध भी उतना ही आएगा। और मैनुअल एक्सप्रेशन बहुत आसान है, मतलब मैनुअल एक्सप्रेशन से तकलीफ भी नहीं होती और मतलब माँ कंफर्टेबली वो करा सकती है। पंप से क्या होता है, पंप से बहुत है कि वो उसको पेन्स भी होते हैं और जितना पंप से निकलते हैं तो इतना फोर्सली दूध फिर भर जाता है, तो एंगॉशमेंट का डर लगा रहता है। तो उससे अच्छा है तो आप हैंड एक्सप्रेशन कराएं। फ्रीज में रखे हुए दूध को निकाल के रूम टेम्परेचर पे लाके या गरम कर सकते हैं वो? नहीं, दूध गरम नहीं करना। जो कंटेनर होता है जिसमें आपने दूध रखा है वो हम एक पानी लेते हैं अलग इसमें, और पानी थोड़ा सा गर्म करके वो पानी में वो कंटेनर रखना है।
तो फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर के आता है, क्योंकि बहुत गाढ़ा दूध होता है तो मलाई ऊपर चली आती है पूरा, तो फैट ऊपर चला आता है। तो इसीलिए हम पानी के अंदर वो कंटेनर रखते हैं, गर्म पानी के अंदर, और फिर थोड़ा सा स्पून से उसको हिलाने के बाद वो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर से हो जाता है। और हम माँ को हमेशा बताते हैं कि जो भी आप बच्चे को खिला रहे हो या पिला रहे हो, उसका एक ड्रॉप आपके हथेली पे डाल के उसका टेम्परेचर चेक करना है। और कोई क्वेश्चंस है? मुझे यहाँ सबको एक ही बात बहुत सिंपल है कि आप बच्चे का लैचिंग चेक करें। अगर आप इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लगा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत माएँ स्तनपान कराती है फिर भी बच्चे का वजन कम है, क्योंकि उन्होंने इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया। तो जितने भी डॉक्टर बेला ने पॉइंट्स बोले बहुत जरूरी है उसका पोजीशन और लैचिंग। मतलब ये प्लीज ध्यान में रखो कि हमें निप्पल फीडिंग नहीं कराना है। जो एरियोला है, मतलब काला भाग जो नीचे का है, वो पूरा मुंह में अगर बच्चे का जाता है तो बच्चे के लिए भी आसान है और माँ के लिए भी स्तनपान आसान है। नहीं तो वो बहुत इतना सुंदर वो अनुभव बहुत दुखद होता है। तो आप प्लीज वो ध्यान दें कि इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और प्रॉपर लैचिंग कराएं। थैंक यू। मैम, एक क्वेश्चन पूछा गया है चैट पे, वेयर कैन वी डू अ सर्टिफाइड लैक्टेशन कोर्स, डू वी नीड टू बी फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड? नहीं, अभी तो जैसे मैंने बोला कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम शुरू करने वाले हैं, तो वो लॉन्च जैसे ही होगा मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। लेकिन मुझे लगता है लैक्टेशन कोर्स एक मतलब इंटरनेशनल लैक्टेशन कोर्स होता है, उसके लिए आपको एक डिग्री होनी जरूरी है, मतलब मास्टर्स होना ज़रूरी है। और बाकी के अगर IYCF ट्रेनिंग आप लेते हो कहीं पे भी, तो उसके लिए कभी भी हमारे भी जो ट्रेनिंग होते हैं मतलब इन्फेंट फीडिंग के, तो हम मतलब विद्या इनका जो फाउंडेशन उनके साथ शेयर करेंगे, तो आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah. So here we come to the end of this fabulous session. एक ऐसा प्लेटफॉर्म विद्या ने क्रिएट किया जहाँ पे सिर्फ औरतें हैं और औरतें बहुत जो पर्सनल बातें हैं वो बताने की प्लेटफॉर्म है, ये एकदम फ्रीली बता पाए। वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर बेला टोनी जी एंड दीपाली मैम। आपने जो आपने सिर्फ प्री प्रेगनेंसी, प्री नेटल, पोस्ट नेटल सब कवर किया। We are very grateful and thankful to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you everyone. Yes, so here we come to the end of this session. Okay, ma'am. Bye. 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 Thank you, Dr. Bella and Deepali ji. Bye. Thank you Vidya team for arranging such a good platform where we can exchange notes and share how to take everyone, you know, on this journey of making India healthy. Yeah. Thank you, Dr. Bella. Thank you so much. Thank you everyone for your efforts, Deepa ma'am, Bella, and it's a pleasure to know you and hope that we'll collaborate and make India healthy. Huh? Yeah. And I would like to say here, Urmi Mukhatbhai, Urmi is there, and also from Delhi, Charu is there. I think so. Charu, are you there? And Devika Mathur. Oh, I don't know whether they left, I guess. When we started saying thank you, they left. Okay, anyways, I will... One request, ma'am. I can... One request. Yeah. Can we have that number on the chat? That toll-free number? Can we have that toll-free number in the chat? We are looking for it. Just give us a minute. That toll-free number, which here it is, 1800267782. Thank you, Bella ma'am. Yeah. Thank you for everything, all your efforts and time. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.